شہریوں کے لیے دال روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ مٹن اور چکن کھانے کے دن ہوا ہو گئے، اب تو دال پکانا بھی غریب کے لیے محال ہو جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں دال ماس چکن سے بھی مہنگی ہو گئی۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے پیٹ بھر کھانا بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ دال ماش کی فی کلو قیمت 600 روپے تک پہنچ گئی، جو چکن سے بھی زیادہ ہے۔ دال چنا کی قیمت بڑھ کر 220 روپے جبکہ دال مونگ 260 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پھل، گوشت، دودھ تو ان کی پہنچ سے دور تھا ہی، مگر اب دال خریدنا بھی ان کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور ان کی بس ہو گئی ہے۔ جس طرح کے پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں سے بات کر رہی ہیں، تو آج ہم لوگ ادھر خریداری کے لیے آئے ہیں، تو یہاں دالیں، چینی اور چاول، ان تمام چیزوں کی قیمتیں بھی بتدریج بڑھ رہی ہیں، جو کہ عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ ان کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف دے، زیادہ سے زیادہ ریلیف دے، تاکہ عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نگران حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مارکیٹ میں حالیہ مہنگائی زیادہ تر مصنوعی ہے، جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف کاغذی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ قیمتیں تو ایسے بتائی جا رہی ہیں کہ جو ریٹ لسٹ پہ ہے اس سے زیادہ وصول کی جا رہی ہیں، اور حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جس طریقے سے یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے یا مصنوعی طور پہ مہنگائی کو بڑھایا جا رہا ہے، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف ہو۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم کھانے پینے کی چیزیں ہی سستی کر دی جائیں، غریب شہری پیٹ بھر کھانا تو کھا سکیں۔ کیمرامین شیخ راشد سعدی کے ساتھ شرجیل حاشر، روہی، ہرون آباد۔ ملازمین سراپا احتجاج۔ رحیم یار خان میں ایپکا اور اگیگا ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں۔ ملازمین کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نگراں حکومت لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی کر کے ملازمین کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ میڈیکل الاؤنس میں اضافہ کرنے کے ساتھ مہنگائی سے پریشان ملازمین کو فوری ریلیف دیا جائے۔ رحیم یار خان میں ایپکا اور سرکاری ملازمین کی دیگر تنظیمیں حکومت کے خلاف میدان میں آ گئیں۔ ملازمین نے پینشن میں کٹوتی اور دیگر مطالبات کے حق میں قلم چھوڑ ہڑتال کر کے ٹاؤن ہال میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں خوب نعرے بازی کی۔ پورے پنجاب میں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے تحت اپنے مطالبات کے حق میں بالخصوص لیو انکیشمنٹ کی بحالی اور جو ہماری پنشن میں ترامیم کر رہے ہیں، اس میں سوچ رہے ہیں، اس پر آج پورے پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کی لیو انکیشمنٹ میں ناجائز کٹوتی کی گئی۔ سرکاری ملازمین پہلے سے ہی مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئے۔ نگران حکومت سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کی بجائے ان کا جینا مشکل کر رہی ہے، جس سے سرکاری ملازمین کا معیار زندگی متاثر ہو کر رہ گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سرکاری ملازمین کی لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی کا فیصلہ واپس لے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرتے جائیں گے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ جنوبی پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ ایپکا اور اگیگا کی کال پر شہر شہر احتجاج کرنے کا سلسلہ جاری۔ لیا اور بھکر میں بھی ملازمین نے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، جن میں مرد و خواتین ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ جنوبی پنجاب بھر میں سرکاری ملازمین کا احتجاج جاری۔ لیا میں بھی سرکاری ملازمین کی تنظیموں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آگیگا کے احتجاج میں مرد اور خواتین ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں خوب نعرے بازی کی۔ مظاہرین پینشن، لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے لگاتے رہے۔ مظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ کرنے پر لاہور میں دھرنا دینے کا اندیا بھی دیا۔ کہ لیو انکیشمنٹ اور پینشن کی اصلاحات نام نہاد حکومت نے کی ہیں، اور ہمیشہ سے یہی دستور ہے کہ لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ جو موجودہ تنخواہ ہے اس پر دی جاتی ہے، پینشن بھی موجودہ تنخواہ کی پرسنٹیج کے حساب سے دی جاتی ہے۔ لیکن حکومت نے اب یہ ظلم اور زیادتی یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو لیو انکیشمنٹ بھی جو آپ کی بیسک پے ہے، جو اس وقت ہماری موجودہ پے کا کوئی 20% بھی نہیں بنتی، اس پر ہمیں دیں گے۔ ادھر بھکر میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی کال پر ملازمین نے احتجاج کیا۔ صوبائی محکموں کے ملازمین نے احتجاجی ریلی نکالی اور ہڑتالی کیمپ بھی لگایا۔ احتجاج میں کلرکس، محکمہ مال اور کلاس 4 کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے اپنے مطالبات پر مبنی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ صدر ایپکا بھکر کا کہنا تھا کہ لیو انکیشمنٹ اور لیو رولز میں تبدیلی کا نوٹیفکیشن واپس لیا جائے۔ ملک سیف اللہ چھینا نے کہا کہ پینشن اور گریجویٹی میں کٹوتی کا نوٹیفکیشن فوری واپس لیا جائے۔ سلیم مغل نے مطالبہ کیا کہ ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنس میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے۔
बहावलपुर में भी एपका मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एपका मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और एहतजाजी रैली निकाली। मुलाजमीन का कहना था कि लिव इन कैशमेंट और पेंशन पर कट नहीं लगने देंगे। बहावलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एपका मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। मुलाजमीन का कहना था कि लीव इनकैशमेंट, पेंशन और ग्रेजुएटी में कट लगाने की कोशिश की जा रही है, जो हमें मंजूर नहीं। 75-76 सालों से इस तरह की कोई तब्दीली नहीं आई कि मुलाजमिन के हकूक सलब कर लिए जाएं। पेंशन जो बुनियादी हक होता है एक मुलाजिम का, उसको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। इन्होंने लिव इन कैशमेंट को डिस्टर्ब किया है। बहावलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने एपका के एहतजाज में भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन का मानना था कि हुकूमतें तो सरकारी मुलाजमीन को सहूलियात और अच्छे पैकेजेस देती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सब उल्टा हो रहा है। उन्होंने कहा कि IMF पॉलिसियां मंजूर नहीं, पहले ही महंगाई ने मार रखा है। हुकूमत ने मुलाजमीन के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। आज ये स्ट्राइक पूरे पंजाब में है। हुकूमत लीव इनकैशमेंट के ऊपर कट लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये निगरान हुकूमत नहीं लगा सकती थी, उन्हें जुल्म किया है, मुलाजिम के ऊपर जबर किया है, ज्यादती किया है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि पेंशन अक्सर मुलाजमीन के बुढ़ापे का सहारा होती है, हुकूमत उस सहारे को न छीने। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस का काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 9 नंबर चौक पर गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक पेपर लगाने वालों को रोका जा रहा है, जिनको भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस का शहर में काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। गाड़ियों से काले पेपर उतारकर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। सर्कल इंचार्ज मोहम्मद शाहिद का कहना था कि काले पेपर वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। हमारे CTO शायद नईम साहब की तरफ से कि जो भी काले पेपर वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जुर्माने किए जाएं और उनकी जो है ना पेपर रिमूव करवाए। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम से जराइम की शरह में कमी आएगी। ट्रैफिक पुलिस की जानब से ये अच्छा इकदाम है। खास तौर पे जो ट्रैफिक हादसा बढ़ रहे थे, एक वजह ये भी थी उसके अंदर, क्योंकि ब्लाइंडर्स ये ब्लैक जो पेपर लगाया होता था, अक्सर औकात टर्न लेने वक्त भी वो नजर नहीं आता था लोगों पे और हादसा बढ़ रहे थे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काले शीशे वाली गाड़ियों का 500 का चालान, जबकि गाड़ियों से ब्लैक पेपर उतारे जा रहे हैं। कैमरामैन कामरान के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान पुलिस थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से मुतहरिक। पुलिस थाना सदर को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के बाद स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। थाना सदर एक बड़ा कॉमन सा नाम है। आपको तकरीबन पंजाब के हर ज़िले में ये थाना सदर के नाम से या थाना सिटी के नाम से बहुत कसरत से ये इस तरह के थाने मिलेंगे। मुल्तान पुलिस थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से मुतहर्रिक। पुलिस थाना सदर को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया। RPO मुल्तान सुहेल चौधरी खुद मैदान में आ गए। RPO का कहना था कि शहरियों को जदीद और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए थाना सदर में IGP स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है। 5 स्टार होटल के रिसेप्शन डेस्क की तरह लगता है। इन्होंने अपनी मेहनत और जो पंजाब पुलिस ने इन थानों पे काम किया है उससे नजर आएगा कि यहाँ पर यंग, एक क्वालिफाइड, एक सर्टन क्राइटेरिया रखने वाले ऑफिसर्स को तैनात किया जाता है। एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि यहाँ पर सारे मौजूद हों। कमेटी जो हमारी बनाई गई है वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे इनको चेक भी करती रहती है और इसके सरप्राइज चेक के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब, IG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और काबीना जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर आई। SHO थाना सदर अजहर गिल का कहना था कि शहरियों को इंसाफ फराहम करने के लिए कोशा हैं। शहरियों की शिकायत का जल्द अजाला किया जाएगा। इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन हमारा 2 एंड पे मुश्तमिल है, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। फ्रंट एंड हमारा पब्लिक डीलिंग एंड है और बैक एंड हमारा जो है वो ऑपरेशनल एंड है। तो फ्रंट एंड में जो है वो तमाम ऑफिसेज जो हमारी जनरल पब्लिक आती है उनको किसी भी किस्म का मसला दरपेश है, उन्होंने फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन जमा करवानी है, उन्होंने FIR का इंदराज करवाना है, उन्होंने SHO से मिलना है। कोई खातून ऐसी आ जाती हैं, विक्टिम हैं, जिनको कोई इशू है, कोई उनका मसाइल हैं उनके, उसके लिए किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर से मिलना है। तो ये तमाम दफातर हमने जो है वो फ्रंट एंड पे रहती है। इस हवाले से थाने में मौजूद गाइड ऑफिसर कैसर खान का कहना था कि शहरियों की शिकायत के लिए थाने में क्यूमेटिक मशीन लगाई गई है। शहरी क्यूमेटिक मशीन से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आवाम का जो मसला होगा, जो भी अपना मसला लेके आएगा, उसके लिए तमाम सहूलियात फ्रंट डेस्क पे दी गई हैं। जो भी मसला होगा अपना वो क्यूमेट्रिक पे अप्लाई करेगा, उसका मसला फ्रंट डेस्क पे ही हमारे अफीसरान मौजूद है, हमारी VSO लेडी अफीसरान, हमारे SHO साहब, हमारे IOs वो मौके पे ही मौजूद हैं, जो उनका मसला मौके पे ही हल करेंगे। रिवायती पुलिस जो कल्चर है वो उसका खात्मा किया गया। थाना सदर को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने या स्पेशल इनिशिएटिव देने का मकसद शहरियों को फौरी तौर पर मसाइल का हल देना है।
शहरी अपना मसाइल फौरी तौर पर थाने से मसाइल का हल हासिल कर सकेंगे। कैमरा मैन इरफान असलम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से अपवा में बनने जा रहा है प्राइमरी स्कूल। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर और CEO ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन मुल्तान के माबैन मुआहिदा तय पा गया है। आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन मुल्तान में महकमा एजुकेशन के इश्तराक से प्राइमरी स्कूल बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने अपवा के साथ MOU साइन कर दिया। अपवा की CEO दुर्श शहवार और डिप्टी कमिश्नर ने MOU पर साइन किया। अपवा ब्रांच में जो MOU साइन किया ये बेसिकली तालीम के हवाले से है और बहुत से बच्चियों और बच्चों को मौका मिलेगा यहाँ पे आला तालीम हासिल करने का। उसके अलावा जो कुकिंग क्लासेस और जो हुनर की क्लासेस हैं उससे हमारा ख्याल है कि खातून को जब आप एम्पावर करेंगे तो वो एक बहुत अच्छी फैमिली और बहुत अच्छी नेशन में हिस्सा ले सकें। हमारा MOU साइन हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, तो इंशाल्लाह जल्दी 2 वीक्स में हम शुरू कर देंगे और इसमें सारा गवर्नमेंट का स्टाफ होगा और बच्चों की फीस भी बिल्कुल नॉर्मल होगी और 64 बच्चे जो हम स्टार्ट में इसको करेंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का कहना था कि स्कूल में 3 कमरे बनाए जाएंगे जहां 100 बच्चे तालीम हासिल करेंगे। तालीम को फरोग देने के लिए अपवा के साथ आज हमने MOU साइन किया है। प्राइमरी स्कूल में 2 असातिज़ा होंगे जबकि तमाम स्टाफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुहैया किया जाएगा। कि वो हमें अपनी इस बिल्डिंग में 3 अदद कमरे अता करें ताकि उसमें वो बच्चे शिफ्ट किए जा सकें और वो बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकें। मैं बहुत मशकूर हूँ वफ़ा का जिन्होंने ये 3 कमरे हमें दिए हैं। आज इस सिलसिले में हमने MOU साइन किया है। वो बच्चे बच्चियाँ वहाँ से हम शिफ्ट करके यहाँ पे करेंगे। असातिज़ा कराम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से होंगे और जो कमरे होंगे उनका जो बिल होगा, बिजली का बिल होगा, वो अपवा अदा करेगा। अपवा की CEO दुर्श शहवार का कहना था कि तालीम की रसाई हर बच्चे तक होनी चाहिए, इसके लिए स्कूल्स की तादाद भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं मुल्तान जिला इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ जो अपवा के साथ मिलकर प्राइमरी स्कूल बनाने जा रहा है। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी महर हसीब कादिर ने हुकूमत से एमरजेंसी बुनियादों पर एनर्जी पॉलिसी लाने और महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी महर हसीब कादिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की कुव्वत खरीद को पसे पुश्त डालकर कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। पूरी कौम जो है वो महंगाई के हवाले से जो है वो परेशान है। प्राइस हाइक पेट्रोल की जो है खसूसन अभी जैसे आपने देखा हालिया दिनों में एकदम से 26 रुपए का इजाफा किया है और अभी सुना ये है कि IMF से जो हुकूमत के मुआहदे हुए हैं उनके नतीजे में शायद ये प्राइस 500 रुपए तक भी जा सकती है, 500 रुपए पर लीटर। जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार का कहना था कि एटमी मुल्क में एनर्जी पॉलिसी इस कदर खराब होना इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत को इमरजेंसी बुनियादों पर एनर्जी पॉलिसी अमल में लानी चाहिए। महर हसीब कादिर ने हुकूमत से अवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा किया। मुस्तकबिल में भी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही। इवन आप इनकी एनर्जी पॉलिसी देख लें, एनर्जी पॉलिसी पे हुकूमत की संजीदगी तभी नज़र आती जब आप कोई उसमें इस सेक्टर में जो है वो पावर सेक्टर में एमरजेंसी नाफिज करते और फौरी तौर पे आपकी प्रेफरेंस पता चलती। महर हसीब कादिर का कहना था कि बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारी मईशत एग्रीकल्चर पर मुश्तमिल है। बतौर वकला रहनुमा हुकूमत से अवाम दोस्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन हसीब के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। चौक आजम में कपास के काश्तकार फी एकड़ पैदावार की कमी के बायस शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि गैर मयारी बीज और नाकिस पेस्टिसाइड्स के बाद बीमारियों ने कपास की फसल को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है। पैदावार में 8 से 10 मन फी एकड़ कमी देखी जा रही है। चौक आजम और गिरदोनवा में कपास की पैदावार में कमी के बायस काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। किसानों का कहना है कि सब्ज तीले, सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी ने फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब नाकिस बीज, गैर मयारी पेस्टिसाइड्स और मौसमियाती तब्दीली ने कपास को शदीद नुकसान पहुंचाया है। रवां सीजन कपास की पैदावार में 8 से 10 मन फी एकड़ तक वाज़े कमी वाक़या हुई है। कपास की पैदावार की पहली चुनाई है तकरीबन 2-2.5 मन तो उत्ते कोई नहीं, तो 10 मन तकरीबन एवरेज आनी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਮਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਲਸ਼ਕਰੀ, ਨਾ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ, ਨਾ ਤੇਲਾ,
सफेद मक्खी का इन्ना हमला है कि जिस वजह से पत्ते जड़े ने वो पूरी खुराक जड़ी नहीं दे रहा इन्हों। काश्तकारों का कहना है कि सफेद मक्खी ने पत्ते का रस चूसा और गुलाबी सुंडी ने टींडे को काट खाया। दूसरी जानब महंगी अद्वियात ने मतवातर स्प्रे नामुमकिन बना दिया है। अखराजात के मुकाबले में आमदन ना होने के बराबर है। महकमा ज़राअत के अफसरान भी फोटो सेशन की हद तक सरगर्म हैं। सफेद मक्खी और सब्ज तेला उसका ETL लेवल जो है ना उससे कई हिस्से ज्यादा है। उसकी वजह ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा और मतलब आपको पता है कि हमारी हुकूमत भी इस हवाले से थोड़ा कमजोर है। किसानों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि आने वाले सीजन में कपास की काश्त और पैदावार बेहतर बनाने के लिए सस्ती खाद, मयारी बीज और पेस्टिसाइड्स की फराहमी यकीनी बनाना होगी ताकि किसान और मुल्क दोनों खुशहाल हो सकें। मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हाथ में नश्तर पकड़े सिर्फ ऑपरेशन करना ही नहीं सीख रहे बल्कि ब्रश और पेंट के जरिए बेहतरीन पेंटिंग्स भी बना सकते हैं और इनकी कैलीग्राफी ऐसी बेहतरीन है कि कोई कह ही नहीं सकता कि डॉक्टर्स का लिखा सिर्फ फार्मासिस्ट ही पढ़ सकता है। डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में फन मुसव्वरी और खताती की 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज हो गया, जिसमें पंजाब भर के 12 मेडिकल कॉलेज के तलबा और तलबात हिस्सा ले रहे हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ कुरैशी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। दीगर प्रोफेसर भी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ कुरैशी के हमरा थे। मेडिकल तलबा की जानिब से पेंटिंग्स और कैलीग्राफी की नुमाइश की गई। मोस्टली ये होता है कि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई टेस्ट के बाद एक और टेस्ट फिर पेपर, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिलता। तो जब एक ऐसा मौका हमें मिलता है ना तो हर बच्चा कुछ ना कुछ लाजमी बनाता है। मैंने तकरीबन 1 साल मुझे लगा ये सारी पेंटिंग्स बनाने में डिफरेंट स्टेजेस पे, क्योंकि साथ साथ पढ़ाई भी थी और साथ साथ ये भी चल रहा था को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कुरैशी का कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं और मेडिकल तलबा और तालिबात की जानिब से आर्ट की मिसाली सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। हमारे स्टूडेंट्स एक तो तालीमी मैदान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी काफ़ी सारी तादाद में स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शंस ले रहे हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स में और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पे आर्ट और लिटरेचर में भी मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी मंझे हुए फनकार से अगर इनका मुकाबला करें तो ये लगता है कि ये किसी से कम नहीं है। आर्ट एग्जीबिशन को देखने के लिए तलबा भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और अपने मोबाइल फोन्स में खूबसूरत तस्वीर की अक्सबंदी करते रहे। ये आर्ट एग्जीबिशन 3 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में पहली बार हज़रत शाह शम्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मुकर्ररीन का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि औलिया अल्लाह ने अपने अमल से इस्लाम को बड़े सगीर में आम किया। वक्त की ज़रूरत है कि औलिया अल्लाह की ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाए। मुल्तान में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हज़रत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में साबिक वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने खिताब करते हुए कहा कि औलिया अल्लाह का बड़ा मकाम है, वली अमल से अपने आप को साबित करता है। हुकूमत में इंसाफ का बोलबाला और हर बात सच्चाई पर मबनी होती है। किरदार और इल्म और सच्चाई और इंसाफ वो अमीर इस्लाम का फरमान है नहजुल बलागा में भी कि सच्चाई और इंसाफ 2 सतून हैं। काफिर की हुकूमत में होगी तो चलेगी और अगर मुसलमान की हुकूमत में नहीं होगी तो नहीं चल सकती। डायरेक्टर हज मुल्तान रेहान खोखर का कहना था कि ख्वाहिश थी कि शाह शम्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो और अब हर साल शाह शम्स कॉन्फ्रेंस होगी। औलिया अल्लाह ने अपने अमल से वाजिया किया कि वली हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद हजरत शाह शम्स की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करना था। ख्वाहिश थी कि सरकार शाह शम्स तबरेज़ की भी एक कॉन्फ्रेंस का हर साल इनेकाद हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब सरकार की करम नवाजी से ही ये जब इंस्टीट्यूशन बना तो इस साल ये पहली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ पर हो रहा है, सरकार शाह शम्स तबरेज़ कॉन्फ्रेंस। और इंशाअल्लाह ये हर साल, जैसे हैदर जावेद सैयद साहब ने कहा, ये वादा रहा कि हर साल यहाँ पर इसका इनेकाद जरूर होगा। शाह शम्स कॉन्फ्रेंस में समाजी रहनुमा नईम इकबाल नईम, सैयद हैदर जावेद, यासिर ताहिर, रशीद आबाद, अब्दुल माजिद वट्टू, जफर खान बाबर, सैयद आसिम रजा और अजहर अब्बास ने भी खिताब किया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा। रहीम यार खान में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर भर में इस हवाले से सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं। आशिकाने रसूल दो आलम के मिलाद का जश्न मनाने के लिए सजावटी सामान की खरीदारी में पुरजोश दिखाई देते हैं।
رحیم یار خان میں عاشقان رسول نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ عشاق نے شہر بھر میں قائم سجاوٹی سامان کے سٹالز کا رخ کیا۔ سجاوٹی سٹالز پر سبز جھنڈے، بیجز، رومال، ٹوپیاں اور دیگر سجاوٹی سامان شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تھا کہ تمام سجاوٹی سامان کی خریداری کرنی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم کی ولادت و باسعادت عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کا عزم کیا ہے، لیکن سجاوٹی سامان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریوں اور خریداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، سرکار کی آمد کی خوشی میں ہم خریداری کرنے آئے ہیں۔ چیزیں تو مہنگائی بھی بہت ہے، مہنگی ہیں، لیکن جشن تو منانا ہوتا ہے نا۔ دکاندار بھی آرائشی سامان کے ریٹ 3 گنا بڑھنے سے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں سامان کی قیمتیں بڑھنے سے شہریوں کی قوت خرید متاثر ہوئی اور ریٹس پر بحث بھی معمول بن گئی ہے۔ اس دفعہ جو سامان 10 روپے کی چیز تھی نا، وہ 25 روپے کی ہمیں خریداری ہوئی ہے، تو ظاہر ہم نے بھی 5-10 روپے رکھ کے نا تو پھر سیل کرنی ہے۔ عاشقان رسول کا مزید کہنا تھا کہ اپنے گھر، محلے، گلیوں، بازاروں اور عمارتوں کو لائٹنگ، جھنڈوں اور دیگر سامان سے سجائیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن پہلے سے بھی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی، رحیم یار خان۔ ڈیرہ غازی خان شہر میں بھی جشن عید میلاد النبی منانے کی تیاریوں کا آغاز۔ مارکیٹس میں سبز جھنڈوں، جھنڈیوں، بیجز اور دیگر آرائشی سامان کے سٹال سج گئے۔ شہری مارکیٹس میں رنگ برنگی لائٹیں اور دیگر سجاوٹی سامان خریدنے میں مصروف ہے۔ ربیع الاول کی آمد عاشقان مصطفیٰ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے پرجوش۔ ڈیرہ غازی خان کے شہریوں نے بھی جشن عید میلاد النبی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ شہر کی مارکیٹوں میں اس حوالے سے سجاوٹی سامان کے سٹالز سج گئے۔ شہری سٹالز پر جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز، لائٹیں اور سجاوٹ کا دیگر سامان خریدنے میں مصروف ہیں۔ ماشاءاللہ یہ عید میلاد النبی ہر سال ہم سٹال لگاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آج کل جو شہری ہے نا، جھنڈے لے کر جا رہے ہیں، چھوٹے جھنڈے، بڑے جھنڈے، بیج لے کر جا رہے ہیں، کوئی جھنڈیاں لے کے جا رہے ہیں، کوئی دکانوں میں سجاتے ہیں، کوئی گلیوں میں سجاوٹ کرتے ہیں۔ سٹالز مالکان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بڑھتی مہنگائی کے باوجود بھی بڑی تعداد میں شہری جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ سٹال سے لائٹیں اور دیگر اشیاء بڑی تعداد میں فروخت ہو رہی ہیں۔ ربیع الاول آنے والا ہے اور 9-10 دن بقایا ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے جوق در جوق اس میں حصہ لینا چاہیے اور اپنی مسلمانی کا مسرت سے اظہار کرنا چاہیے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ مساجد، گھروں اور گلیوں کو خوبصورتی سے سجائیں گے۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔